نیچے میں نہیں دے سکے. اور الحمدللہ سما الحمدللہ ابھی بھی اگر جو دوست اسکیم 33 سے واقف ہے انہوں نے ریسنٹلی کورٹ یارڈ کے نام سے پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے, اور اس میں وہ ساری سہولتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس ایریا میں ایک بینچ مارک ہے جو اس سے پہلے کہیں پہ تھی نہیں. مطلب وہ لفٹ کی کوالٹی, وہ جنریٹر کی سہولت اور وہ والی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں لگتا تھا کہ جو اسکیم 33 کے لوگوں کی ضرورت تھی, جو ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی کہ لائٹیں گئیں تو لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ لائٹ نہیں ہے بلڈنگ میں, یہ پتہ نہیں تھا کہ لفٹ چلے گی یا نہیں چلے گی, جنریٹر ہے اس کو آئل اس کا بیک, وہ سہولتیں جو طارق روڈ, کیپٹن, سول لائن, باغ آئلینڈ میں جو لوگ انجوائے کر رہے تھے. لیکن لوگ تو ہمارے ہم ہی ہیں سارے. تو بات یہ تھی کہ جس کا جہاں پہ بجٹ بنتا ہے وہ وہاں پہ ہر بیسک سہولت دینے کے لیے اس کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے. رزلٹ اس کا یہ آیا الحمدللہ کہ ہمارے ارد گرد کے اکثر بلڈر حضرات, اکثر جو بلڈنگ کے اونرز اور یونین ہیں, انہوں نے آ کے ہماری کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ ہماری بھی بلڈنگ کی مینٹیننس لے لیں. تو یہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک آگے نیا سفر شروع کیا. ہمیں دیکھیں اور بلڈر کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مینٹیننس خود کریں. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک اچھی بلڈنگ بنا لیں, ایک اچھی گاڑی لے لیں, کوئی چیز لینے کے بعد اگر آپ اس کو مینٹین بھی کرتے تو آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہوتی جاتی ہے. اس میں ایک پہلے خرابی ہے, پھر دوسری, پھر تیسری. اچھا یونین کے جو دوست ہوتے ہیں وہ سارے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں کام میں, پھر ملازمت میں, کوئی کاروبار میں بزی ہوتے ہیں, وہ اتنا وقت نہیں دے پاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بلڈنگ کی مینٹیننس جب کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کافی جو اسکیم 33 تشریف لائیں. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اس طرح وہ اسکیم بنی الحمدللہ ڈیلے میں ہوگی. اب اس کے برابر میں دوسرا پروجیکٹ ہمارا آخری مراحل میں 4 سے 5 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ وہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہم یہاں آئے اس طرف, یہ ایک ایسا ایریا تھا جو آپ سمجھے کراچی کے کمزور علاقہ تھا. مطلب ایک ٹائم تھا کہ لوگ سرال روڈ سے آنا تھوڑا سیف محسوس نہیں کرتے تھے. گلشن معمار تھا, ایک مخصوص طبقہ تھا جو یہاں رہتا تھا, ایک ان کی فیملیاں ملٹیپلائی ہوئی وہ وہیں پہ. لیکن اب ہم نے آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کوالٹی کا نہیں رہا, سڑکیں, لائٹیں, کامن, سیکورٹی. تو یہ جب ہم نے شروع کیا اس وقت اس جگہ کے ڈائنامکس کافی کمزور تھے. لیکن وہ ہماری کمپنی کا شروع سے ٹرینڈ ہے. تو دوست جانتے ہوں گے کہ سن سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے کمپنی کا. اس وقت وہ ایریا سب کو دور لگتا تھا, لیکن وہ ایریا, وہ پروجیکٹ اس ایریا کی پہچان بن گیا. لوگوں کو پتا تھا کہ اسکیم 33 میں ڈاگ کے پیچھے سن سٹی, یعنی چاپل سن سٹی ایک پروجیکٹ, وہ اس وقت کے حساب سے بہت اچھا تھا. لوگ رہے, لوگوں نے پیسے بھی الحمدللہ. اب اس کی اگر ہم بات کریں, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں تھا کہ ہم ایک لو کاسٹ کے ایسے لوگوں کا حصہ ساتھ شامل کریں جو بچت قسطوں میں چل سکیں. پھر جب ہم نے یہاں پہ 120 گز کا گھر بیچنا شروع کیا تھا تو ہم نے سنگل اسٹوری 24 لاکھ روپے سے قسطوں میں دینا شروع کیا. اس وقت کے حساب سے وہ اس ایریا کی پرائس ایسی تھی کہ لوگوں کو اس وقت بھی تھوڑا سا کانشیس تھے کہ 24 لاکھ قسطوں میں دیں گے, یہ اتنا دور ہے, یہاں پہ سہولتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. الحمدللہ آج یہ 1.25 کروڑ کا گھر ہے. اچھا ہم اس کو کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ ہم کمپیئر کرتے ہیں گلشن معمار سے. گلشن معمار میں اگر 120 گز کا ایک آدمی ایک 1 یونٹ گھر لینا چاہتا ہے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ اس کو مل رہا ہے تو وہ اسکیم گیٹڈ نہیں ہے. وہاں پہ سڑکیں, اس کی الیکٹریفیکیشن ساری انڈر گراؤنڈ ہے. آپ نے بات خصوصی میری توجہ آپ کو یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن پہ آپ اتنا ڈفرینس ہے پرائز کا کہ اگر آپ 4 آنے اور 1 روپے کا فرق سمجھیے گا کہ اگر آپ اوور ہیڈ کرتے ہیں, پول سے لے کے جاتے ہیں بجلی. اچھا کلائنٹ کو اس بات کا احساس کب ہوتا ہے جب وہ رہنا شروع کرتا ہے. ہم سب دوستوں نے جب بحریہ ٹاؤن جانا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ بھی ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. جبکہ پہلے اتنی سہولتیں تھیں, آپ دیکھتے تھے اسکیمیں بنتی تھی, اسمال ہوتی تھی, بیسک انفراسٹرکچر اتنا کوالٹی کا نہیں تھا. تو اس پروجیکٹ کو لے کے کمپنی نے یہ مینٹین کیا, یہ کوشش کی کہ اس ایریا میں ایک ہی ایسا پروجیکٹ ہو کہ جو اس ایریا کی پہچان کریں. بظاہر دیکھنے کو یہ اب آگے کی طرف بڑھے گا. آگے ناردرن بائی پاس ہے, نئے پروجیکٹ آپ دیکھیں گے, کافی سارے لوگ کچھ بنا کے کر رہے ہیں, کچھ پلاٹ بیچ رہے ہیں, لیکن بنا ہوا پروجیکٹ جلدی آباد ہو جاتا ہے. سب سے اہم بات کیا تھی اس ایریا کی پرابلم, کہ لوگوں کو تھا یہاں بجلی کب ملے گی. دوسرا پرابلم تھا یہاں گیس آئے گی یا نہیں آئے گی. اور آپ اگر جو سامنے گارڈن سٹی بہت پرانا پروجیکٹ ہے, جو دوست اس علاقے میں رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ابھی بھی کافی علاقوں میں وہاں پہ سوئی گیس کی سہولت نہیں ہے. الحمدللہ اس پروجیکٹ پہ ہماری جو گیس ہے وہ ہمارا جو گیس کا مین سب اسٹیشن آپ جیسا کے ای سی کا ہوتا ہے, ان کا ایک ہب ہوتا ہے, تو مین لائن انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کے اندر لا کے انسٹال کر دی ہے. بجلی ہمارے تمام گھروں میں لگ چکی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 115 سے 120 لوگ ہم سے قبضہ بھی لے چکے, اور باقی 250 گھر ہمارے ایسے ہیں کہ ہم اگلے مہینے 2 مہینے میں ہم تیار کر کے جو ہم دے رہے ہیں. سب گلیاں آپ آگے تھوڑا سا دیکھیں گے,
मशवरा असल में प्लान ये हमारी कंपनी का, हमारी कोशिश अब ये है कि अब हम तमाम ब्रोकर दोस्तों को साथ लेके चलें। हम आपके साथ कुछ इस तरह का बिजनेस मॉडल तय करें कि जिसमें आपको ये यकीन हो कि इस बिल्डर ने बना के दिया है, इसने कब्जा भी दिया है, वक्त पे लीजें भी दी हैं और आपने क्लाइंट सफर नहीं किया, बल्कि आपके क्लाइंट ने जो 24-25 के जो भी कीमत में चीज़ खरीदी, जब उसको कब्जा मिला तो उसकी इतनी अच्छी प्राइस थी कि उसके आपके साथ एक रेगुलर बिजनेस का सिस्टम आगे चलता रहा। इस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए मैं सिर्फ बता दूं कि हम इसकी लीजेस के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। आपके टाइम में एक स्कीम आई थी आसान लोन की, आप सब दोस्तों ने सुना होगा, टीवी पर अखबारों में सारे बैंकों ने लोन दिया था। तो कराची के सिर्फ 5 प्रोजेक्ट थे जो क्वालिफाई हुए थे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिनके सारी कागज पूरे थे पूरे कराची में। मिजान बैंक से कोई भी दोस्त ये बात पता कर सकते हैं, मिजान हमारे साथ इनकॉर्पोरेट था, उस काम को मिजान बैंक के साथ हमने करना शुरू किया था। उस 5 में से 2 प्रोजेक्ट हमारे थे, एक चैपल कोर्टयार्ड और एक चैपल स्काई, ये सॉरी आपका वाले इसका। तो पॉइंट ये था कि कागज पूरे थे, लीजेस अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते थे, तो बैंक हमारे साथ कंफर्टेबल था उस प्रोजेक्ट के। अच्छा, दूसरी एक बात अहम ये है कि बिल्डर हजरात कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि लीजेस में ताकीद करें, उसमें उनका बेनिफिट क्या होता है कि जी एक ट्रांसफर के मद में लोगों के पैसे आते रहते हैं। तो हमारी कंपनी का सिस्टम बड़ा सीधा कहता है कि एक फिक्स हमारे डायरेक्टर्स ने फीस मुकर्रर कर दी। अब किसी को कोई अप्रीहेंशन नहीं थी, उसको पता था कि मैंने पैसे मेरे गाहक ने पूरे दे दिए, एक दफा के दफ्तर लेके जाऊंगा, जो भी 2 लाख जो एक जो पे जायज अमाउंट थी वो ट्रांसफर हुए और फटाफट लीजेस होनी शुरू होगी। तो ये आप जो भी स्कीम 33 में हज़रात काम करते हैं वो लाजमी इस बात से अवेयर होंगे कि वो कोर्टयार्ड जो बिल्डिंग है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह आधी या उससे कुछ ज़्यादा लीजेस भी हो चुकी है। सेम हमारा इंशाल्लाह इसका भी मॉडल है। अब आप सब लोगों के साथ हमारा जो ये एक ताल्लुक आज कायम हुआ है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम इसको लेके चलें। हम आपको हर महीने अपने किसी न किसी नए प्रोजेक्ट पे इन्वाइट करेंगे, उसकी अपडेट करेंगे और हमारी कोशिश क्या होगी कि आप हमारे साथ ऐसे चलें कि आपको मज़ा आए। देखिए, आप सब दोस्त अगर जिनका ताल्लुक स्पीड से है तो हमारी कोशिश होगी कि इतना अच्छा कमीशन तय करें कि जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे और आपको टाइम पे मिले। सिर्फ अनाउंस करना इज नॉट द इशू। कई जगह ऐसा होता है कि बिल्डर हज़रात अनाउंस करते हैं, वक्त आप आ रहे हैं जा रहे हैं। हमने यहाँ स्टैंडर्ड जितने भी अभी यहाँ हमारी पूरी टीम है, तो आप कभी भी किसी से फिर आपका स्कीम 33 में हमारा सबूरा पे आपने देखा होगा, कोर्टयार्ड के नीचे ऑफिस है, उसमें हमारे हुसैन है, कुछ और लोग मौजूद हैं। आप सब हज़रात से मेरी कोशिश ये कि आप हमारे साथ एक मुस्तकिल ताल्लुक के लिए चलिए। आप भी हमारी प्रॉपर्टी देखिए, इसके कुछ मॉडल्स हैं, हम आपको वो दिखाते हैं और किसी भी कराची के अच्छे प्रोडक्ट से इसका आप कंपेरिजन कर लीजिए। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, जैसे कोई आदमी अपने लिए घर बनाता है, उसको जिस तरह की सहूलतें चाहिए, जिस तरह उसको अगर ग्रिल चाहिए, उसको किस किस्म का बाथरूम चाहिए, किस क्वालिटी की टाइल चाहिए, कहीं आपको कोई क्लाइंट अगर शिकायत नहीं करेगा कि बिल्डर ने एक ठेकेदारी वाला काम दिया। ठेकेदारी वाले काम 50 साल चलता नहीं है। इस कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह जो हाईएस्ट सबसे टॉप का प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है वो हमारी 50 मंजिल बिल्डिंग है, जो कि सीएम हाउस के सामने, इसको अगले चंद माह में हम कब्जा दे रहे हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि पूरे पाकिस्तान की पहली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो मुकम्मल हुई है और वो डिलीवर हुई है। नाउ बहुत सारे लोग करते हैं ये आप लोग कभी मशीन भी लेके जाएं, आप गुजरें, आपको वो बिल्डिंग खुद नजर आएगी अलग। उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी एक वजह यह भाई कि लोग जो बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन करता है उसका जहन में होता है ये बना के एक दफ़ा देख के वो फारिग हो गया ना, उसका चीज़ दे दी आपके नाम। लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया है कि वो हम भी चाहते थे एज अ कंपनी को लैंडमार्क बन जाए। जो उसका एक्सटीरियर एलिवेशन है वो सिर्फ मोहन पे होटल जो है या वो वाले कंपनी जिन्होंने अपने लिए कोई बिल्डिंग बनाई है जिसके बाहर शीशा, जिसके बाहर का अलोको पॉन्ड, वो सारी चीज़ें होती तो डायरेक्ट बेल्जियम से इम्पोर्ट हुई और सारी इंस्टॉल हुई। अब उसको थोड़ा सा कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह खुल जाएगा। उसकी शक्ल ऐसा फसाड होगा जो मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ कि कराची में तो कम से कम किसी बिल्डिंग का आपको नजर नहीं आएगा। ये उस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है कि जिसने बड़े कॉन्टिनेंट के सामने पीछे एक मोहन पे होटल का भी दोबारा रीडू किया। पॉइंट ये है कि इस कंपनी के एक तरीकेकार यह है कि ये चीज़ ऐसी बनाई जाए कि ग्राहक को ये लगे कि उसने खुद बनाई है, उसको ये ना हो कि यार एक चीज़ बनाने के बाद दे दी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी कंपनी ने तय कर दी है वो ये है कि हम अपने हर प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस खुद करेंगे। हमने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम के तहत आपको, आपके क्लाइंट को ये इत्मीनान होगा कि जो पैसे वो दे रहा है ना वो उसकी सहूलत भी ले रहा है। एक सेपरेट कंपनी है कि जो उसको पूरी तरह मेंटेन करी। आप तो जो भी दोस्त स्कीम 33 में रहते हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये है मुझसे घर रेंट पे दे के वहाँ पे आ गए रहने के लिए। सिर्फ रीज़न ये कुछ सहूलतें उनको नजर आई, कुछ उसमें एजेड हजरात हैं तो
तो ये अच्छी बात है, एजेंट को तो हर जगह का पता है, उसको हर बिल्डिंग का पता है कि कहाँ क्या सहूलत है, क्या कमी है, क्या पेशिंग है, पार्किंग, सिक्योरिटी। इसी तरह हमने इस प्रोजेक्ट को भी किया है। इसको जब से बंदा एंटर होगा, ई टैग गाड़ियों पर होगा, उसको पता है सारी गेटेड कम्युनिटी है, सारी अंडरग्राउंड इसकी सड़कें, पानी, मेंटेनेंस हम इसकी शुरू कर चुके हैं। और हम घर से डोर टू डोर मेंटेन, मतलब घर से उसका कूड़ा पिक होता है और उसको पता होता है कितने बजे मैंने इस तरह, जिस तरह आप हम लोग बाहर सुनते थे ना, ये टाइम है, आप अपना पैकिंग करके और लोग आएंगे और आपसे जैसे बाहर सुनते थे यूरोप इस तरह की सफाई है, तरीक़ेकार है। कोशिश ये है हमारी कि हम इस प्रोजेक्ट को इस एरिया का एक लैंडमार्क बना दें। इसमें आप सबका तामुन हमें किस तरह चाहिए कि देखें, हमारी टीम में एक लिमिटेड लोग हैं, हम एक लिमिटेड इन्वेंट्री बेच सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना, आपको बुलाने का मकसद ये आप लोग अपनी आंखों से देखें और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट का हमें क्या बेनिफिट होगा। देखिए गिव एंड टेक है, हमें ये कि एक्स्ट्रा कमीशन पास ऑन करें आपको, और आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो चीज़ आप किसी को लेके दे रहे हैं वो इस काबिल है कि कल को बेचने के लिए भी आपको बोलेगा तो आपको 10, 20, 25 लाख आप उसको ऊपर की रीसेल करके देंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सी जो बात बताई ना, 24 लाख से 1.25 करोड़ तक का सफर आसान नहीं था। इसके लिए बड़ी मेहनत डालनी पड़ी, बड़ी मुशक्कत, पर वो क्वालिटी डालनी पड़ी कि जो क्वालिटी आप किसी भी कराची की अच्छी गेटेड कम्युनिटी से कंपेयर कर लें, इंशाल्लाह कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा तारुफ था। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम मौजूद है, अगर इसके बाद आप पसंद करते हैं तो हम मॉडल भी हमारे को घर है, रेडी है, एक अगर आप देखें। और मैं आप सबके लिए ये जाऊँ कि हम हर कुछ अर्से से बाद अगले किसी प्रोजेक्ट में आप सबको इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे। आप लोग तशरीफ लाएँ। ये तो छोटा सा बहाना है कि हमारे डायरेक्टर्स के कुछ है कि नहीं ऐसे दोस्त हैं तो ऐसे नहीं जाएँ, तो कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ लविंग ड्रॉज हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको और आगे से मज़ीद बेहतर करें और आप लोगों के लिए ज़्यादा करें। आप लोग साथ जुड़ के चलेंगे तो आपको ये इत्मीनान होगा कि इंशाल्लाह के प्रोडक्ट जिसके लिए आप और हम मिलकर मेहनत करें, एक अच्छी चीज़ बनाएं और एक कस्टमर को इस एतमाद के साथ दें कि कल को बेचने के लिए भी वो आपसे कहे तो उसको पता हो यार ये मुझे अच्छी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है। तो सिर्फ ये सारे प्रोजेक्ट का गूगल हुआ है। अगर किसी दोस्त के साथ कोई सवाल है कुछ तो मुझे पूछ लें, और अगर नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं मॉडल का, और फिर भी कोई बात हो तो हमारी टीम हर जगह मौजूद है, तो आप लोग इंशाल्लाह फिर हमसे राब्ते में रहेंगे। और ये मैंने जो दोबारा सबके में ले आऊँ, कमीशन का स्टेटस अब बड़ी बकरीद तक किसी भी यूनिट का 5 लाख, और फिर वक्तन फवक्तन देखते रहें जो जैसे सिस्टम चलेगा, जिस प्रोजेक्ट का जो होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आप लोगों को अच्छा बेनिफिट दें। प्राइस ऐसी नहीं है कि जिसको आप किसी भी क्लाइंट से, गुलशन मेमार से कंपेयर करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उससे हमारी प्राइस कम ही है। ये तो बात है, हमारी इससे बड़ी बढ़ती हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।